مجھے یہ کہنے میں آج نہیں کہ انجمن میلاد محمد مصطفیٰ گزشتہ 7 سالوں سے محفل میلاد اور عید میلاد النبی کا باقاعدگی سے اہتمام کر رہے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کے توسط سے ہمارے ایک بہت بزرگ ساتھی گزشتہ 15 سالوں سے کمیونٹی کی خدمت میں کارۂ انجام دے رہے ہیں۔ میں ان سے بڑی عقیدت اور احترام سے یہ کہوں گا، اور ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی ان کو خطاب کیا ہوا ہے بابا نعت۔ آپ سب لوگ پہچان گئے ہوں کہ میں بلانا چاہ رہا ہوں ہمارے محترم حفیظ الرحمان گولڑی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور آقا نامدار کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں۔ پلیز آپ آگے آ جائیں سارے۔ آج کی اس تقریب کے لیے میں نے نعت کی تیاری کی تھی، لیکن آتے ہی کچھ احباب نے دوسری نعت کے لیے مجھے حکم کیا ہے، وہ مولانا حضرت صاحب کی نعت ہے، تو ہم امیدوار میرا ساتھ دیں گے اس نعت میں۔ صلی علی نبی
سخا کا تم اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم بھر سن آرے رم جھم رم جھم 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 دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند بھر سن آرے رم جھم رم جھم بھر سن آرے رم جھم رم جھم بھر سن آرے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا. اور یہاں سے نعت شعر ہے کہ الروح فدا کا فسید حرکات یا کی شعلہ دیگر بر زن عشقا یا کی شعلہ دیگر بر زن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا یہ جان بھی پیار جلا جانا. الشمس و نظرت الالینی چوبات بارسی عرض بکنی چوبات بارسی عرض بکنی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا. اب کسے اپنا یار بناؤں میں کسے دل کے زخم دے
بس یار من لاچار تو ہی بس یار من لاچار تو ہی مجھے سینے سے اپنے لگا میں گزارش کروں گا علامہ حضرت صاحب سے پوڈیم پہ تشریف لائیے. معزز سامعین، ابھی آپ کی خدمت میں جس ہستی کو پیش کر رہا ہوں، بعض علماء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تقریر سن کے ان کی تقریر ان کا تعارف بن جاتی ہے. بعض ثناخوان ایسے ہوتے ہیں وہ نعت پڑھتے ہیں تو ان کی نعت سن کے وہ نعت ان کا تعارف بن جاتی ہے. اور بعض لکھنے والے رائٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ لکھتے ہیں تو ان کی لکھائی پڑھ کے تو ان کا تعارف بن جاتی ہے. یہ وہ ہستی ہے جن کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ان کا چہرہ ہی نورانی، ان کا ہی تعارف بن جاتا ہے. معزز سامعین، ہم اہل سنت و جماعت جہاں اپنے رب سے ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، جہاں اپنے نبی سے والہانہ محبت کرتے ہیں، جہاں نبی پاک کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، جہاں نبی پاک کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہاں ہم نبی پاک کی امت کے جو اولیاء ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ پیر صاحب کا تعارف کرائیں، اور میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں، اللہ کے ولیوں کا تعارف کرانا یہ بھی میرے رب کی سنت ہے. یہ بھی کس کی سنت ہے بولو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو دوسری سورت نازل فرمائی، سورہ بقرہ. بقرہ کہتے ہیں گائے کو. کس کو کہتے ہیں بولو؟ اور یہ بھی اللہ کے ایک ولی کی گائے تھی. اس گائے کی گوشت کا ایک ٹکڑا میت کے ساتھ لگایا تھا، وہ زندہ ہو گیا تھا. اسی گائے کی نسبت سے اللہ نے سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا. حالانکہ اس سورت میں نماز کا ذکر ہے، اس سورت میں حج کا، روزوں کا، اللہ کی توحید کا، نبی کی رسالت کا ذکر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے گائے کے نام پر سورت رکھی. قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ میرے ولیوں کو بھی کوئی عام ولی اور عام لوگ نہ سمجھنا. سورہ آل عمران یہ بھی اللہ کے ولی کی نسبت سے سورت کا نام ہے. اور سورہ مائدہ کے اندر ایک آیت آتی ہے، بنی اسرائیل میں. اکثر میں آسٹریلیا میں یا ان ملکوں میں جب آتا ہوں تو میں، آپ لوگ پاکستان، انڈیا جاتے ہیں نا جی،
اور وہاں پر اولیاء اللہ کے ولیوں کے مزارات بھی ہیں۔ میں کہتا ہوتا ہوں جب یہاں سے جاؤ اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں، تو نیت یہ کیا کرو ہم اپنے شہر میں جو اللہ کے ولی ہیں ان کے مزار پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کو بھی مل لینا، بہن بھائیوں کو بھی مل لینا، لیکن اللہ کے ولی کی مزار کی نیت کیوں کرنا؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا تھا، اور اس نے بخشش جب چاہی تو اس کو یہ کہا گیا ادخل القریۃ المقدسۃ التی، اس بستی میں جا، اللہ کے ولی ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کر، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ راستے میں گیا، آگے راستے میں مر گیا، اللہ نے فرمایا میرے ولی کی بارگاہ میں جا رہا تھا، جب جنت میں لے جاؤ اس کو۔ سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں۔ حضرت بابا قاسم موڑوی رحمت اللہ علیہ غوث الزمان، جنہوں نے 80 سال موڑا شریف کی زمین پر ایک پتھر پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر کی صدائیں بلند کی، اور آپ کے دادا حضور، آپ کے والد حضور 200 سال سے موڑا شریف میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور قبلہ پیر صاحب جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہیں، 4 سال تک اسلام آباد کی اسپتال میں آپ نے کام بھی کیا، لیکن جب والد گرامی چلے گئے وہ سب کچھ چھوڑ کر دنیا بھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، میں کہتا ہوں میں نے نیو یارک میں بھی کہا ہے کہ وہاں پر 25 سال سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم الشان جلوس نکل رہا ہے اس کی ابتدا کرنے والے یہ اللہ کے ولی تھے۔ اور میں کہتا ہوں جس محفل میں یہ اللہ کے ولی بیٹھے ہوں اس محفل کی حاضری بھی برکت والی ہے، اور انشاءاللہ وہاں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی قبولیت والی ہوتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پیر صاحب کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم قائم رکھیں۔ تشریف لاتے ہیں والی موڑا شریف پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث العالم۔ علماء اہل سنت والجماعت جشن عید میلاد النبی نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ برادران اسلام، شدیان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے۔ چراغ عشق نبی جلا کے آواز دیتے ہیں۔ اللہ ہشمی صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ چراغ عشق نبی جلا کے آواز دیتے ہیں، حضور اپنا سمجھ کے نواز دیتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں دنیا کی لذتوں کو وہ جب عاشق یا رسول اللہ کی صدا دیتے ہیں۔ اور ایک میرا ترانہ ایک بڑا مجھے یاد ہے شعر، اس سے پہلے میں کتب صاحب اور ان کی جو ساری ٹیم ہے ان کو یہ میں عرض کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ دنیا تجھے پکار اٹھی دیوانہ محمد کا، دنیا تجھے پکار اٹھی دیوانہ محمد کا، اسی عالم میں بن جائے کاشیانہ محمد کا، کہیں بن کر اویس
कहीं बनकर बिलाल आए, खुशा किस्मत जिसे मिल जाए मैखाना मोहम्मद। हज़रात ग्रामी कदर और मेरी इज़्ज़त माँ बहनें, ये आज हम सब मिलकर इस दियार गैर में नबी रहमत की बारगाह में अपनी अक़ीदतों का इजहार करने के लिए आए हैं। कोई पाकिस्तान से आया, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, कोई अमेरिका के मुख्तलिफ जगहों से आया। हम सब की एक ही इंटेंशन, एक ही आरज़ू है कि मौला करीम, हम तेरे नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का इजहार करने के लिए आए हैं। और मेरा ईमान है उस पाक हस्ती का जिक्र हो रहा है, तो जिस फ़ज़ा में, जिस वक्त में और जिस जगह पे उस आका मदनी ताजदार के तस्करे हो रहे हैं, मेरा ईमान ये कहता है वो लम्हे सरापा रहमत वाले बन जाते हैं, वो सरापा इनायात वाले बन जाते हैं, क्योंकि उस हस्ती का जिक्र हो रहा है जिसकी खातिर कायनात को सजाया गया है। और मेरे दोस्तों, वो खुशकिस्मत हैं, वो लम्हे भी इनाम वाले, और वो जो उसका इंतज़ाम करने वाले वो भी इनाम वाले, और जो बुलाकर मेरे हजूर का जिक्र करते हैं वो भी इनाम वाले। हम सब की एक ही आरज़ू है कि रब की रज़ा भी हमें मिले और मुस्तफ़ा की वफ़ा भी हमें, और ये उसी को मिलती है। ये लम्हे उसी के सीने में जांगज़ी होते हैं और उसी के सीनों में इनकलाब पैदा होता है जो दिल की अता गहराइयों से मेरे आका से वफ़ा करते हैं। और जिन्होंने वफ़ा की है, यही तो ये फैज़ान जारी है। ये कितनी खूबसूरत आवाज़ों के साथ मेरे आका की मदद सराई कर रहे थे, मेरे आका का जिक्र कर रहे थे। ये आवाज़ें भी कितनी इनाम वाली होंगी, और उन्हें इनाम मिलेगा मैदान महशर में, जब हर एक को नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। और मेरा ईमान और विजदान ये कहता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है ज़िक्र रसूल में गुजारा होगा, इस दुनिया में भी कामयाब है, बरज़ख की रातों में भी कामयाब है, और महशर के मैदानों में भी कामयाब होगा, कि हम उस आका का जिक्र करने के लिए आए हैं। और उसी के हवाले से सिर्फ मैं एक या दो अहादीस आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये तमहीनन ये बात कहना चाहता हूं कि ये आज की बात नहीं कि हुजूर की ये मिलाद कर रहे हो, ये आज के तस्करे नहीं हैं। मैं इमाम मुहद्दिस जोज़ी का वो हवाला आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसने 900 साल पहले हरम पाक में, आप ये लिखते हैं कि उस हरम पाक में भी जब हुजूर के मिलाद का दिन आता था, उस शाम बैठकर जिक्र रसूल का इत्माम किया करते थे। मिस्र और शाम की गली और बाजारों में मेरे आका का जिक्र होता था। और फिर हजरत मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह दहलवी ने आप फरमाते हैं कि आपने एक दफा हुजूर के मौलूद के मौका पर जब हरम पाक में गया तो एक मजलिस सजी हुई थी, उस शाह के रसूल की महफिल सजी हुई थी। और ये भी देखें कि आप कहते हैं कि 350 साल की बात है, उस वक्त भी हरम में उस शाह जो है हुजूर की महफिल को सजा के बैठे थे। कहते हैं मैंने देखा गौर से तो मुझे अनवार और तजल्लियात की बरसात भी नजर आई, और मैंने महसूस किया कि इस आका के जिक्र में फरिश्तों का भी नज़ूल हो रहा है। और फिर मैं गौर की नज़र से देखा, वो नज़र क्या है? वो इश्क की नज़र है, वो वफा की नज़र है। उस नज़र से देखा फरिश्तों का भी नज़ूल हो रहा है, और रब की अनवार और तजल्लियात का भी नज़ूल हो रहा है, जहाँ पे मेरे आका का जिक्र होता है। तो ये आज की बात नहीं है मेरे दोस्तों, आज जो करता है वो खुशकिस्मत है, वो इनाम वाला है। और ये मेरा ईमान कहता है, आज हम कर रहे हैं, कल कोई और करेगा। मेरे आका का जिक्र का फैज़ इसी तरह जारी और सारी रहेगा। और ये हदीस पाक सैयद हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है ये हदीस, और ये मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि हुजूर आका मदनी ताजदार, नूर मुजस्सम ताजदार मदीना के उशाक, द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफेट इस्लाम, वो भी हुजूर का जिक्र रसूल, हुजूर के जिक्र का एहतमाम करते थे। और वो मस्जिद नबी कितनी आला मस्जिद है, उस मस्जिद में बैठकर मेरे आका का जिक्र कर रहे हैं और रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। थैंक्स टू द ऑलमाइटी अल्लाह एंड प्रेजिंग द प्रॉफिट मोहम्मद। हुजूर का जिक्र बात कर रहे हैं, और इसी असना में हुजूर आए और कमली वाले ने पूछा तुम क्या कर रहे हो? कहा या रसूलल्लाह, हम रब का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने ये महबूब नबी हमें अता फरमाया है, जिसने हमें अंधेरों से निकाला है और अपनी रोशनियों का फैज़ान अता किया है। तो कहा आप कसम उठाओ। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, कसम उठाते हैं, हम सिर्फ यही काम कर रहे थे कि आपका जिक्र कर रहे थे, जिक्र खैरुल अनाम कर रहे थे। तो मेरे आका ने कहा मुझे मालूम है जिस वक्त तुम मेरा जिक्र कर रहे थे और रब का शुक्र अदा कर रहे थे, इस अदा को रब ने भी पसंद फरमाया।
اور जबरील को भेजा कि मेरे महबूब को ये पैगाम सुना दो, जो मेरा जिक्र करता है और तेरा जिक्र करता है उसे बख्शिश का पैगाम अता फरमा। तो मेरे दोस्तों, आशिक जब बैठते हैं फिर इस तरह नहीं बैठते। हम ये ना देखें कि दाएं वाला क्या देखता है बाएं वाला, ये देखो कि गुम्बत खजरा का मकी तुम पे कितनी नजरें कर। जब मेरे आका का जिक्र हो तो मस्तियों के साथ दुरूद भी पढ़ते हैं और नारे भी लगाते हैं। यही तो पहचान है आज उशाक की, यही तो हमारा ईमान है, और हजूर की मोहब्बत ही ईमान की कामलियत है। ये इन वाले बैठे किबला हाशमी साहब तशरीफ फरमा है, यही है रिक्वायरमेंट ऑफ द परफेक्ट बिलीवर्स। क्या है वो? यही कि सीने को इश्क रसूल से आबाद कर लो। और जिसने मेरे आका की मोहब्बत को अपने सीने में बसा लिया, जब वो सजदा करता है, जब वो कुरान पढ़ता है, जब वो मेरे नबी की सुन्नत को इख्तियार करता है, उसका चेहरा भी नूर से चमकता है, उसका अंदर भी। और यही मसैदान है। दुआ करें हमें भी अपने आका से मोहब्बत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। और इसी मिलाद के हवाले से इस तरह किबला हज़ारवी साहब ने भी बयान फरमाया। उससे पहले हमारे बहुत प्यारे यहाँ के स्पीकर, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में हजूर की मोहब्बत और हमारी इस नौजवान नस्ल के हवाले से उन्होंने बयान किया। मेरे दोस्तों, ये मिलाद की हवाले से मैं एक ही हदीस आपके सामने रखता, मैं बहुत शार्ट कर रहा हूँ, और हदीस पाक है कि हजूर आका मदनी ताहिदार अपने गुलामों के जुर्मट में बैठे हैं, और सरकार ने क्वेश्चन किया, और ये आज हमारे लिए ये मशअल राह है, और ये पैगाम सरकार ने पूछा कि बताओ कि अजीब ईमान किसका। हजूर ने पूछा अपनी नूर वाली ज़बान से और अपने गुलामों से, और वो गुलाम जिनका इश्क भी आला है, और जिनका तकवा भी आला है, जिनका रातों को जागना भी आला है, जिनका फिक्र और ख्याल मेरे आका के इश्क में गुजरता है। उन्होंने हर चीज़ को कुर्बान करके अपने आका की निस्बत को न छोड़ा। उनसे पूछते हैं कि बताओ कि अजीब ईमान किसका है। मेरे आका के गुलामों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आप पे कुर्बान जाएं, अजीब ईमान तो फरिश्तों का है। मेरे आका ने कहा कि अजीब बात नहीं, वो तो हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मस्त रहते हैं। कोई खड़ा है तो वो जिक्र कर रहा है, बैठा है तो जिक्र कर रहा है, सजदे में है तो जिक्र कर रहा है, वो तो हर वक्त उसकी तस्बीह करते हैं। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, जो आपकी जमात है, जो रसूलों की, मुरसल की, नबियों की जमात, अंबिया की जमात, इनका ईमान अजीब है। मेरे आका ने कहा, यह भी अजीब बात नहीं कि रब अपने नूर के जलवे उनके सीनों में डाल देता है, उन्हें तो वही का पैगाम देता है। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, जो हम आपके पास बैठते हैं, आपकी कुर्बत में बैठते हैं, आपके हाल और काल से बाखबर हैं, आप, हमारा ईमान अजीब है। मैं कुर्बान जो मेरे आका ने कहा, तुम्हारा ईमान भी अजीब नहीं है। तुमने तो अपनी आंखों से मेरे जलवों को देखा है, तुमने तो अपनी आंखों से सूरज को पलटते हुए देखा है, तुमने तो अपनी आंखों से चांद के 2 टुकड़े हुए देखा है, तुमने तो अपनी कानों से जिस रास्ते में गुजरता हूँ उस राह के पत्थर में मुझे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या तुमने तो देखा है। ये अजीब ईमान नहीं तो कहा किसका अजीब ईमान है? दैट वर द गोल्डन वर्ड्स गिवन बाय द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कहा कि सुनो, उनका अजीब ईमान होगा जो बिन देखे मेरी महफिलों को सजाया, जो बिन देखे मेरे जिक्र में आकर मस्तियां किया करेंगे, मुझसे प्यार करेंगे, और हदीस में आता है कि शिद्दत से प्यार करेंगे। तुम देख के ईमान लाए हो, तुम्हें एक बार मुबारक, और जो बिन देखे ईमान लाएंगे उन्हें 7 बार मुबारक हो। ये कितना बड़ा इनाम, ये कितनी बड़ी बरकत है, ये कितना बड़ा इनाम कि आज कुतुब साहब और उनके साथियों ने कैलिफोर्निया की सरजमी पर मेरे आका के जिक्र का इत्माम किया है। ये कितने बड़े बाबरकत लम्हे हैं। आप जितने भी अपने अपने घरों से आए हो, जिस इरादे से आए हो, आए तो मेरे रसूल के जिक्र में हो। मेरा ईमान है जब वापस जाएंगे तो खाली ना जाएंगे। वो लजपाल आता है जो कायनात के हर जर्रे के लिए रहमत बनकर आया है। ये भी टाइटल मेरे रब ने अता किया है, ये किसी मौलवी या पीर का नहीं। वो खालिक कायनात जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, ही हिमसेल्फ मेंशनिंग द ग्लोरियस कुरान, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, द मर्सी फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी। हर दौर, हर जमाने की मखलूक की अगर रहमत का दरवाजा खुलेगा तो वो दरे मुस्तफा की निस्बतों से खुलेगा, मेरे आका की मोहब्बतों से खुलेगा। तो मैं तो इस तरह कहता हूँ, मेरे नबी का नाम भी आला है, मेरे नबी का काम भी आला है, मेरे नबी का देखना भी आला है, मेरे नबी का बैठना भी आला है, मेरे नबी का हाथ लगाना भी आला है। देखे ना, उम्मे माबद के घर जब सरकार गए तो वो सारी सूखी बकरियां थी। मेरे नबी ने कहा दूध चाहिए,
उस माई ने कहा दूध कोई नहीं, ये तो बकरी सूखी है। कमली वाले ने कहा इसे मेरे पास ले आओ। ये अथॉरिटी आता प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए आशिक इश्क करते हैं। सरकार ने अपने नूर वाला हाथ फेरा तो दूध इतना आया कि घर के बर्तन कम पड़ गए, दूध जारी रहा। हाथ लगा तो इंकलाब आ गया। ये फैजान है, हुजूर के गुलाम है, मौत भी कबूल है, तो जिंदगी फजूल है। तो यही वो मोहब्बत है, इस मोहब्बत को आबाद कर लो। हदीस में आता है कि मैन केम टू द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सेड व्हेन द डे ऑफ जजमेंट विल कम, द प्रॉफेट replied, have you prepared for it? He said, I do not have lot of prayers and sacrifices and fasting, but I do love with Allah and his beloved prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The prophet replied, on the day of judgment you will be with those that you have loved. आज इस मिलाद को बहाना बनाते हमने मोहब्बत के लिए महफिल को सजाया, हजूर का फैज़ हासिल करने के लिए महफिल सजाया, इतने इल्म वालों को बुलाया। तो मेरा ईमान है उस आका के करम के सदके से आज हमारे सीनों पे भी करम हो जाएगा, हमारी सोचों में भी इनकलाब आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि उस नबी का नाम भी याद आ है। हजूर ने खुद अपनी नूर वाली ज़ुबान से फरमाया ना कि ज़मीन पे मैं मोहम्मद हूँ, और मोहम्मद के मानी क्या हो, बार बार तारीफ की जाए। आज हम कर रहे हैं, कल भी और करेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन मेरे आका की तारीफ से ज़बानें थकती नहीं, बल्कि ज़बानों में इश्क का फैज़ आम हो जाता है, सीनों में बलबले आ जाते हैं, इसलिए कि जिसका जिक्र करते हैं उस जिक्र का इतना कमाल है, जितना करोगे उतना फैज़ हासिल हो जाएगा। कहा कि ज़मीन पे मोहम्मद हूँ, आसमानों पे अहमद हूँ, मुझे माही बनाया। These are the characters of the Prophet Islam. ये अपनी ज़हनों में बात बैठा लो। कहा कि मुझे रब ने माही बनाया है कि मैं तारीकियों को मिटाने वाला हूँ, मैं बातन सोचों को मिटाने वाला हूँ, और रब के नूर के जलवों का फैज़ हम करने वाला हूँ। और मुझे हाशिर बनाया है। हाशिर का बड़ा मकाम है। मेरे आका की जो है वो अज़मत और शान और कैरेक्टर का फैज़ देखो कि मुझे हाशिर बनाया गया और मुझे आखिर बनाया गया, सबसे आखिर में आने वाला। मैदान महशर में हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। जितने बड़े बड़े अंबिया है, रसूल है, नबी है, सबको अपना अपना होगा, लेकिन एक ही हस्ती है जो तुम्हारे और मेरी बख्शिश का सामान लेके आएगी, जो मकाम महमूद का जलवा हो। हाय हाय हाय, कितना बड़ा मकाम मेरे रब ने मेरे रसूल को अता फरमाया है। और ये कुरान में रब ने कहा है कि मकाम महमूद का तस्करा, कि जिसकी बार बार तारीफ की गई, कि वो तारीफ वाला मकाम है, वो हमद वाला मकाम है। रब तारीफ कर रहा है, मैं और आप नहीं करते, कुरान में रब कहता है ये मकाम महमूद तारीफ वाली जगह है। तो जरा अकल से सोचो कि अगर मैं उस वक्त तक तो मेरा आका अभी बैठा नहीं वहाँ पे, अभी जलवा फरोज नहीं हुआ, उस मकाम को रब तारीफ कहता है, ये तारीफ वाला मकाम है। तो जिस मकाम पे मेरा आका आराम कर रहा है, उम्मत खज़रा में आराम कर रहा है, उसकी तारीफ कितनी होगी। मेरा ईमान और विजदान ये कहता है कि जहां मेरे आका आराम करते हैं, उसकी मट्टी जो है, जिस मट्टी के साथ मेरे आका का नूर वाला जिस्म लगा हुआ है, वो हरम से भी आला है, वो अर्श से भी आला है, वो काबा की हुर्मत से भी आला है, इसलिए कि जिसकी खातिर कायनात को सजाया गया वो आला है। ये वो मकाम है। दुआ करें, मैं अब कहीं और निकल गया। मेरे नबी का नाम भी आला, मेरे नबी का काम भी आला। और ये मेरी अकीदत है, हज़ारी साहब तो सुनते हैं, भाजपी साहब को सुना रहा हूँ कि मेरे नबी का नाम भी आला, और कि वो नाम है जो अव्वल भी है, जो आखिर भी है, जो ज़ाहिर भी है, जो बातिन भी है, जो अदा भी है, जो वफा भी है, जो नूर भी है, जो ज़हूर भी है, जो शरीयत भी है, जो तरीक़त भी है, जो वलायत भी है, जो हकीकत भी है, जो रहूफ भी है, जो रहीम भी है। ये वो अज़मतें मेरे रब ने मेरे रसूल को अता फरमाई है। हम तारीफ करके अपनी बख्शिश का सामान लाते हैं। मेरे रसूल का मकाम भी आला है। हज़रत आयशा से हदीस है ना कि एक सहाबी रसूल जब उन्हें हजूर के चेहरे को देखने की बेचैनी होती तो वह दौड़ के जाकर मस्जिद नबी में चेहरे रसूल को देख लेते। तो एक बार सोचा, आज दुनिया में तो जब जी चाहता है हजूर के चेहरे को देख लेते हैं, जब यहाँ से जाएंगे तो सरकार तो आला मकाम पे होंगे,
जन्नत के आला मकाम में होंगे। द लीडर्स ऑफ द प्रॉफिट है, वो नबियों का सरदार है और हम तो सरकार के गुलाम हैं। इधर तो जी चाहता है तो देख लेते हैं, वहाँ पे क्या होगा। वो अफसुर्दा हुआ, गमगीन और परेशान हुआ, क्योंकि उसका इश्क कामल था। उसने अपने दिल से कहा इधर तो चेहरा रसूल को देख लेते हैं, उधर कौन दिखाएगा। रोते हुए आए हजूर के पास, कहने लगे या रसूलल्लाह, यहाँ पे जब भी भूख लगती है दौड़ के आके आपके चेहरे को देख, आपसे वफा कर लेते हैं। वहाँ पे तो आप जन्नत में आला होंगे, फिर हमारी एक्सेस नहीं होगी, हम पहुँच ना सकेंगे। तो मेरे आका ने उसकी मोहब्बत को देखा, लेकिन इतना ही देखा कि रब ने भी पसंद कर लिया और रब ने कुरान में ये पैगाम सुना दिया, एक पैगाम पहुंचा दिया कि कहा कि जो इस दुनिया में तुझसे प्यार करता है उस दुनिया में भी तेरे करीब रहेगा। आज ये बहाना तो बनाया हमने महफिल मिलाद का, ये नारे लगाए, ये जिक्र किया, इत्माम किया। मेरा ईमान है कमली वाला लजपाल है, वो करम फरमाए, खुदा ये करम फरमाए और ये बरकतें नसीब फरमाए। क्योंकि कायम भी सुल्तानी साहब ने भी मदा सराई करनी है और हजूर का जिक्र, ये नात पढ़ना, ये आज की बात नहीं। सोचो ना 1400 ईयर अगो हजूर आका मदनी ताजदार बैठे होंगे, सैयद अबू बकर भी बैठा होगा, सैयद उमर फारूक भी बैठे होंगे, सैयद अली शेर खुदा भी बैठे होंगे, उस्मान गनी भी बैठे होंगे, बिलाल हबशी भी बैठा होगा, सैयद अबू हुरैरा जैसे आशिक रूह असाब सुबह के आशिक भी बैठे होंगे, और वहाँ पे हसन बिन साबित, इस पे मेरे नबी की नूर में निगाह पड़ती होगी। तो क्या कहा कि खुलिक़्ता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाअ। ये जब कहा होगा, नबी ने सुना होगा तो कितना करम किया होगा। ओ प्रॉफिट, यू हैव बीन क्रिएटेड फ्री ऑफ ऑल डिफेक्ट्स एंड इंडीड यू हैव बीन क्रिएटेड एज यू विश। जिस तरह रब ने तुझे, तूने चाहा, तेरे रब ने तुझे बनाया। तो मौला करीम हमें अपने आका से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। कौन सा पहलू छेड़े, कौन कौन सा पहलू, हर पहलू में नूर नजर आता है, हर 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 जगह पे मेरे आका की बरकतों का फैज़ नजर आता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर सुबह सरकार के जिक्र से मुनव्वर होती है और जो ये करते हैं उन्हें ये इनाम मिलता है। अल्लाह ताला हमें भी ये जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और इमाम जोज़ी ने ये भी कहा था कि जो हर रात को ना हजूर की मिलाद समझ के मनाता है, रब उस पे इतना करम करता है जितना मांगे उसे अता करता है। बहुत शुक्रिया। आज थोड़े से प्रोग्राम में इसके चेंजेस हो गए हैं, तो इंशाअल्लाह मैं सब मेहमान हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ। डॉक्टर फरीद आसिम साहब, इमाम इब्राहिम फहीम फ्राम ऑकलैंड, डॉक्टर हाशमी साहब, सदारत की फ़ायदा अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर हाशमी साहब। इन्हीं से हमने सीखा है। साउथ कैलिफोर्निया में जो महफिल चल रही है, चला रहे हैं, शाम में चलाई थी हज़ारवी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्तानी साहब भी आपको तो शुक्रिया। इंशाअल्लाह मौलाना अब्दुल कादिर साहब, सैयद अदम पाशा साहब, अली साहब, जुबैर फारूकी साहब, आप सब को बहुत बहुत शुक्रिया महफिल में तशरीफ़ लाए। और जो यहाँ पे मौजूद हैं सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद सुल्तानी साहब महफिल नात इंशाअल्लाह पेश करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हमारी जो अंजुमन है, अंजुमन मिलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह से हमारा 8वां सालाना प्रोग्राम सदर कैलिफोर्निया में है। और इसके पीछे प्रोग्राम तो यहाँ माशाल्लाह हमारे हफीज़ुर रहमान साहब काफ़ी अर्से से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्हीं से हमने सीखा है, उन्हीं की बदौलत हमें हिम्मत है जो लोग चला रहे हैं प्रोग्राम यहाँ। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे मंथली प्रोग्राम है और वीकली प्रोग्राम भी माशाल्लाह हो रहे हैं। हमारी अंजुमन के तहत मंथली मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होता है एवरी फर्स्ट मंडे बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट, और ख़त्म वसिया शरीफ 11वीं शरीफ का प्रोग्राम होता है एवरी सेकंड सैटरडे ऑफ द मंथ। और जो आपके सामने आज जो प्रोग्राम में जो इंतजाम किए हैं, इसके पीछे माशाल्लाह बहुत लोगों की मेहनतें हैं, काविशें हैं और बहुत काम टाइमिंग जो इस महफिल के लिए हमारे तकरीबन 3-4 महीने पहले 6 महीने पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। और ख़ास तौर से हमारे कमरुद्दीन साहब जो डेनवर में तशरीफ़ होते हैं,
वो आए हुए हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ीशान मसूद साहब जो ह्यूस्टन से तशरीफ लाए, खास तौर से उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे हमारी टीम के मेंबर हैं, इनसे फ़ोन में कांटेक्ट रहता है, फेसबुक पे कांटेक्ट रहता है, इस वजह से तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जो टीम मेंबर हैं उनको मैं स्टेज पर इन्वाइट करूँ और थोड़ा सा पजीराई कीजिए। सबसे पहले मैं हमारे तुबला हफीज़ुर रहमान साहब से गुजारिश करूँगा स्टेज पर तशरीफ लाइए। ये वो हस्ती हैं कि जिनकी बदौलत हम लोग काम कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मैं गुजारिश हुआ नईम अहमद मलिक साहब से, आपका गला माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है, इनके लिए खुद नारा लगाए हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हमारे बुलबुल मोमिन आज मोहम्मद अनवर साहब, राशिद साहब अनफॉर्चुनेटली आज नहीं है यहाँ पे, पाकिस्तान बन गए हैं, उनकी शिरकत थी। मोहम्मद यूनुस साहब कहाँ हैं, वो भी तशरीफ लाइए। मुदस्सर हबीब साहब भी नहीं नजर आ रहे हैं, गालिबन मूवी माई टीम के मेंबर हैं, शायद कुछ मसरूफियात हो गई आज। ये है मुदस्सर हबीब साहब तशरीफ लाइए जनाब यहाँ। ज़ीशान मसूद साहब हॉस्टल से तशरीफ लाए, हमारे ये भी टीम मेंबर हैं, अभी कुछ महीने पहले यहाँ से को खास तौर से बुलाया गया, मोहब्बत में आए हैं यहाँ से। कमरुद्दीन साहब, मोहम्मद कमरुद्दीन नक्शबंदी साहब माशाल्लाह। जाहिद मसूद साहब, आगा फर्रुख साहब, अनवर अली साहब, अनवर अली भाई, कामरान हफीज, आप भी आ जाइए, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। अतीक भट्ट साहब, आपसे गुजारिश है स्टेज पे आइए। फिरोज अब्बास साहब, फिरोज भाई कहाँ हैं, अभी आइए आप, क्यों शर्मा रहे हैं। अजीम खान साहब, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कैमरा लेके आप भी आ जाइए 2 सेकंड के लिए स्टेज पर। और हमारे नन्हे मुन्ने नाफ़ान जो पिछले एक अरसे से माशाल्लाह हर महफिल में नाफ़ानी के प्राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मुसव्वर अली साहब, मुसव्वर अली प्लीज कम टू द स्टेज। रफ़ीक भाई पाकिस्तान गए हुए हैं। वकास पाशा, कला चौधरी, मकसूद काजी साहब, आप भी तशरीफ लाइए। मकसूद काजी साहब माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, ये हर प्रोग्राम में किचन का, जी हाँ, किचन का मामला जो यही संभाले हुए होते हैं। तो ये हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत से हज़रात हैं जो मेरी लिस्ट में लिस्ट कर गया हूँ, तो इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये बाकायदगी से मंथली प्रोग्राम अटेंड करते हैं और गौसिया शरीफ की महफिल अटेंड करते हैं और मेहनत करते हैं। और एक और खुश आइन बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 12 रबीउल अव्वल के महीने में हज़रत पीर तरीक़त डॉक्टर गुफरान अली सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाते हैं, यहाँ आए थे कैलिफोर्निया। एहतिशाम भाई उनके मुरीद हैं, तो उन्होंने बख्शा था हमें कि यहाँ पे महफिल अटेंड करें। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पहली रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक एवरी नाइट महफिल मिलाद शरीफ हुई है, फर्स्ट टाइम एवर इन कैलिफोर्निया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का जी। तो काफ़ी टाइम ले लिया, बस ये कि इंशाल्लाह अब सुल्तानी साहब नाचीर पढ़ेंगे, उसके बाद सलाम होगा, उसके बाद इंशाल्लाह ईशा की नमाज़ होगी। आप हज़रात से गुजारिश है नमाज के लिए राइट साइड पे सफ़े बनाइएगा, लेफ्ट साइड में हमारी टीम में दस्तरखान बनाना शुरू कर देंगे। ऐसी नमाज खत्म करें, कोशिश करेंगे लेफ्ट फार साइड में दस्तरखान नहीं, वहाँ पे तशरीफ़ रखें इंशाल्लाह खाना आप हज़रात शुरू करिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। माशाअल्लाह, कहते हैं जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, दिलों को अपनी मदीना बनाए बैठे हैं। ये कह गया है आके मेरे कानों में कोई, नज़र से देख के सरकार आए बैठे हैं। नज़र के हवाले से कहता चलूँ हाज़िर कराम, हमारी और आपकी ज़ाहिरी निगाह ज़मान और मकान की पाबंद है,
لیکن ہمارے تخیل کی آنکھ کی نہ تو کوئی حد ہے نہ کوئی لمٹ. ذرا اسی شعور کی آنکھ کو اگر آپ کھول کے دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا کی شبیہ اور میرے آقا کا تخیل آپ کے ذہن و دماغ پہ آنا کوئی ناممکن بات نہیں ہے. اب میں اپنے آج کے خصوصی مہمان نعت خواں جو کہ مدینہ منورہ سے تشریف لے کر آئے ہیں انہیں اس شعر پہ بلاؤں گا. کرم جو آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جو آل نبی کا شریک ہوتا ہے، لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے. مدینہ سے آئے ہوئے میرے مہمان نعت خان جناب محترم رانا ازور سلطانی صاحب سے میں موقعانہ گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گلہ عقیدت پیش کریں، بلکہ ان سے کہوں گا کہ گلدستہ عقیدت پیش کریں، کیونکہ یہ ایک نعت